Good morning, children. So, today we are going to cover the topic articles. So, as I have already discussed many times, articles can be divided into two parts, right? First is indefinite article, and second is definite article. Indefinite and definite. Alright? So, what is definite article? The is known as definite article, and a and an is known as indefinite article. Alright? As you all can see here, it's written also article an, right? This is known as indefinite article, and the is known as definite article, right? So let's go through this passage which is given here. Kyra is wearing the bright red frock while Samira is dressed in a pink top and brown pants. They are sitting on the bench in a park. Our weather is pleasant. Kyra is eating ice cream. Ice cream nahi, it's an ice cream. Kyra is eating an ice cream. Samara is eating an apple. Okay, article should be here. Cows are cawing incessantly and little nahi hoga. La sound hota hai. That's why we will put here a little bulbul. So this is incorrect one. You all can see this here given the correct one, right? Kyra is wearing a bright red frock. So right, she has wore a frock, and the color of the frock is bright red, while Samara is dressed in a pink top. You all can see here na, यहाँ पे pink के आगे and lag गया है. So these are the wrong articles which is used in this passage, right? So you all can see here the correct uses of the correct use of article, definite article and indefinite article in this. Okay, you all can compare this passage to this passage. Okay, now can you tell which paragraph is correct? Obviously you know that the second one, I mean this paragraph is correct. This is incorrect, right? Paragraph 2 is correct, whereas paragraph 1 is incorrect. Can you tell what are the mistakes in paragraph 1? You all know that the mistakes were related to article. There was not proper use of a and the, है ना? A and और the को use नहीं किया गया है सही से according to the word, according to the noun. जो भी noun है, like कि अगर pink है तो आप pink के आगे and use नहीं कर सकते हो. Why? क्योंकि जो sorry, not pink, it's a for example, if I'm writing a pink frock, है ना, तो pink तो you know that कि adjective है, फ्रॉक क्या है, नाउन है, तो ये फ्रॉक के लिए ही आता है आर्टिकल, है ना. लेकिन जो आर्टिकल होता है, ये जो बीच में वर्ड पड़ता है, ये जो हमारा एडजेक्टिव होता है, इसके साउंड के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट होता है ना. लेकिन आर्टिकल एक्चुअली में किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग, अगर आप ऐसा कहते हैं, I am an honest. So this is incorrect sentence. Why? क्योंकि हम एडजेक्टिव जो होता है उसके पहले हम and का यूज नहीं करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि I am an honest boy, है ना, अब ये बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के लिए आपने क्या यूज किया, एन यूज किया. सो दिस इज करेक्ट नाउ. ओके, अब यहाँ पे इसको हॉनेस्ट तो हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट. एच इज साइलेंट देयर एंड ऑनेस्ट, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज देयर आर थ्री आर्टिकल्स ए एन एंड द. ए एंड अ एन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि वो क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है. इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि वो निश्चित नहीं होता. जैसे मैं आपसे ये कहूँ, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दीजिए, राइट. अगर मैं आपको बोलूँ गिव मी अ पेन, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कोई भी पेन दे देंगे, आप मुझे ब्लैक भी दे देंगे, आप मुझे ब्लू भी दे देंगे, आप मुझे ग्रीन भी दे देंगे, बिकॉज इट्स नॉट डेफिनिट, नथिंग इज सर्टेन इन माई सेंटेंस. आई एम जस्ट सेइंग गिव मी अ पेन, राइट. बट इफ आई एम सेइंग गिव मी द पेन which you have given me yesterday, राइट. जब मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे वही पेन दे दो जो आपने मुझे कल दिया था, मीन्स नाउ आई एम डेफिनिट. व्हेन आई एम सेइंग गिव मी द पेन,
Alright, if I'm saying give me the pen which you have given me yesterday, it means now I'm very certain कि कल जो आपने मुझे वो blue pen दिया था, I'm just asking for that pen only, right? So this is the main difference between indefinite article and definite article. Indefinite article जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो एक के सेंस में भी यूज होता है, जैसे give me a pen, a का मतलब हुआ कि एक पेन दे दो, और according to the pronunciation, जैसे अगर मैं ये कह रही हूँ कि it's a pen, right? तो ये पर साउंड दे रहा है तो हमने इसके आगे अ यूज किया. अगर मैं आपसे ये कहूँ give me an onion, ओके तो ये जो हिंदी स्वर की अगर हम बात करें तो इसको हम अ कहते हैं, अनियन, राइट? तो जो ये अ है वो क्या है? स्वर है. अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, है ना? तो ये क्या है? स्वर है. तो हिंदी में जो स्वर होता है और जब इंग्लिश में जो भी वर्ड होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें स्टार्टिंग के जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं. और जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ही इज़ ही हैज़ completed his MA, राइट? तो ये जो MA है, ठीक है, MA, तो ए साउंड आ रहा है. अगर आप इसे हिंदी में लिखो तो एम, लेकिन इंग्लिश वो अल्फ़ाबेट में आपको पता है कि एम कॉन्सोनेंट होता है. लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन पे जाएं, एम, ये एम, तो एस साउंड क्या होता है? आपका हिंदी स्वर में आता है. तो हम इसके आगे क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं. अगर हम आपको एक और एग्जाम्पल दें बच्चों, तो जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्ट बॉय, है ना? शुरू तो ये एज से हो रहा है. एज क्या होता है? अगर हम इंग्लिश अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो एज जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है, और इंग्लिश वॉवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें आपका होता है ए, ई, आई, काइंडली वेट, ए, ई, आई, ओ, यू. दीज आर द वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है, अगर हम इसी के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस गलत भी हो सकता है. कैसे? जब अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है आई एम ऑनेस्ट बॉय, है ना? तो अगर आप अ यूज़ करते हो, आप ये देख रहे हो अरे एच तो कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके आगे तो अ लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑनेस्ट होता है. तो जो अ होता है, ये जो आपका अ दिख रहा है, ये हिंदी साउंड की अगर हम बात करें तो ये स्वर में आता है. ठीक है? सो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So let's do to the exercises, right? So here examples: a Christmas carol, an ice cream, an ant, a sledge. Notes: the article a is used before singular countable nouns that begin with a consonant sound. A yo-yo, a zoo, a poem, a mountain, right? आइस क्रीम है तो एन यूज हुआ है, एंट है तो एन यूज हुआ है. The article an is used before singular countable noun that begin with a vowel sound. Vowel sound, सिर्फ vowel की बात नहीं हो रही है, sound की बात हो रही है. मतलब कि वो sound कैसे करता है? अ sound करता है, ए sound करता है, ओ sound करता है, उसके according ही हम an का use करते हैं. ठीक है? Like an orange, an answer, an essay, an umbrella. Now, and also used before the words whose first letters sound like a vowel. An hour, h is silent here, right? You all can see. An MP, sound at aim. An honest man, h is silent. A यूरोपियन, साउंड ऑफ यू, यहाँ पर यू का साउंड आता है इसलिए ये एन यूरोपियन नहीं हुआ, क्या हो गया? अ यूरोपियन. अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू है तो हम एन लगा देंगे, लेकिन तुरंत गलत हो जाएगा क्योंकि हिंदी साउंड में आप इसको य पढ़ते हो, है ना? यूरोपियन. नाउ अ यूनिवर्सिटी, सेम हियर. तो आपको ये साउंड की भी समझ होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम एन का यूज़ करते हैं. A and so some notes are given here. A and an are used to point out a general
और अनस्पेसिफिक पर्सन, थिंग और एनिमल, ठीक है। तो ए और एन का यूज जो होता है वो जनरल या स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और एनिमल को पॉइंट आउट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल्स, आई सॉ अ मैन रनिंग आउट ऑफ मिसेस दीक्षित हाउस, ठीक है। मैंने एक आदमी को देखा जो कि मिसेस दीक्षित के घर से आ रहा था, है ना। जेन इज ईटिंग एन एप्पल, जेन एक एप्पल खा रहा है। एप्पल के अकॉर्डिंग हमने एन यूज कर दिया। सो यू ऑल कैन सी दी स्ट्रक्चर, ठीक है। द रिफर टू द स्पेसिफिक थिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पर डेफिनेट चीज़ों की बात करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, राइट। नाउ एग्जाम्पल्स, आई सॉ अ यंग बॉय सेलिंग न्यूज़पेपर, मैंने देखा कि जो ये लड़का है, अ यंग बॉय, मतलब अब देखो इसकी पहली बात उन्होंने कर ली, इसलिए जब दोबारा हमने उस लड़के की बात की तो हमने उसके आगे द लगा दिया, मतलब कि अब वो लड़का डेफिनिट हो गया। The boy walked barefoot, knocking on the car windows to sell his papers, ठीक है। तो जो वो लड़का था, जिस एक लड़के को मैंने देखा था, वो एक लड़का यानी कि द बॉय वॉक्ड barefoot, मतलब कि नंगे पाँव टहल रहा था, knocking on the car windows, जो कि कार की विंडो को नॉक कर रहा था अपने पेपर को बेचने के लिए, राइट। द और कहाँ पर यूज़ करते हैं, जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज होती है बिफोर दैट, फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, द सैटर्न. It is used before the names of famous building, the Taj Mahal, the Hawa Mahal, right? The pyramids, the Rashtrapati Bhavan. It comes before the names of a rivers and ocean, the Ganga, the Nile, the Pacific Ocean. It is also used before the names of holy books, the Bible, the Quran, the Bhagavad Gita. Next, it comes before a community or a group, the poor, the rich, the Parsian, the Indian, right? It is used the names of newspaper, the Indian Express, the Times of India, the Hindustan Times, the Amar Ujala, right? It is also used when the reader and speaker know that a specific noun is being talked about, right? Can you please stir the soup, मतलब कि अभी पहले बोला गया can you make me a bowl of soup, and now he is saying can you stir the soup, मतलब कि उस particular soup की बात हो रही है. Where you have kept the keys, Shalini has gone to the temple. It comes before musical instruments. जैक प्लेज द वायलिन, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं, राइट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, आपको यहाँ क्या करना है, सुटेबल आर्टिकल्स का यूज करना है। तो बच्चों, कावेरी वांटेड टू मेक mushroom and corn pizza for dinner, so she went to a store to get what, to get a required things, okay. Am I right? Right. Kaveri wanted to make mushroom and corn pizza for dinner, so she went to the store. मतलब कि उस स्टोर पर गई जहाँ पर उसे मशरूम और पिज़्ज़ा से रिलेटेड चीज़ें मिलती है, राइट। सो शी वेंट टू द स्टोर to get the required things. Sorry children, for we will put here the, right, required things. She bought a packet, ठीक है, एक पैकेट खरीदना. She bought a packet each of mushroom, right, and corn. She also bought a bottle. इन दोनों में हम अ का यूज करेंगे, ठीक है. A bottle, a packet, a bottle of pizza sauce and 3 cheese cubes. She thought she had purchased everything for the पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा का मतलब ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो पिज़्ज़ा बनाना चाह रही है. अब हम उसी पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव पुट हियर द पिज़्ज़ा. सो शी पेड फॉर द ग्रोसरीज, ओके. जो भी ग्रोसरीज उसने खरीदी, द पर्टिकुलर ग्रोसरीज विच शी हैड ब्रॉट, राइट, शी हैड पेड फॉर इट एंड वेंट होम. As she pulled into the driveway, we will put here again she remembered the pizza base, right. We will put here how could she have forgotten the pizza base.
शी वेंट बैक टू द स्टोर, जहाँ से अभी वो होके आई है, ठीक है, एंड बॉट 2 पैकेट ऑफ पिज्ज़ा हाउस, sorry, 2 पैकेट of pizza base, one for the evening, one for the evening and another for breakfast next morning. See children, जो evening होता है, morning होता है, इनके पहले हम article दा का use करते हैं, in the morning, in the evening, है ना. Now worksheet 2. Sheena lives in the state, okay, the state of Rajasthan. Now please give me a glass of cold water, ठीक है, under an advice, advice a sound is there, so we will put an, under an advice. See children, एन हमारा सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, एडवाइस ऑफ डॉक्टर सुमिता, नाउ शी इज पर्टिकुलराइज, मीन्स सुमिता डॉक्टर है जिन्होंने कुछ सर्टेन एडवाइस दी है, राइट. सो वी वोंट पुट हियर द, यहाँ पे तो हम अ लगाएंगे ही, अ ग्लास ऑफ, अ मीन्स 1 ग्लास ऑफ, राइट. सो अंडर द एडवाइस मीन्स यहाँ पर्टिकुलराइज किया गया है बिकॉज सुनीता इज देयर. अंडर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, द पर्टिकुलर डॉक्टर मीन्स सुनीता took her medicine, right. अंडर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, ये जो इसने एक पर्टिकुलर डॉक्टर से, सुनीता ने एक पर्टिकुलर डॉक्टर से वो मिली, और जब उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने जो एडवाइस उसको दिया, उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग उसने दवाइयाँ ली, ठीक है. माई सिस्टर इज द इन द क्लासरूम, राइट. सविता हैज गॉट अ कार, what is, sorry, a cat. Savita has got a cat. What is the cat's name? ठीक है. सो कैट्स नेम में क्या हो जाएगा, क्योंकि हम कैट को ऑलरेडी डिस्कस करें, पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस किया कि हमने एक कैट देखा और इस कैट का क्या नाम, राइट. तो इसलिए हमने वहाँ पर द यूज़ कर दिया. नाउ द सिक्स्थ वन इज देयर अ कॉफ़ी शॉप डाउन, कोई भी कॉफ़ी शॉप चलेगी, ठीक है, इसलिए वो एक कॉफ़ी शॉप पूछ रहा है. डाउन द रोड, मतलब जो जिस पर्टिकुलर रोड पे मैं खड़ा हूँ, इस रोड पे क्या कहीं कॉफ़ी शॉप है. कैन यू गिव द, कैन यू गिव, लेट मी रब दिस वन, कैन यू गिव मी, ऑलराइट. सो कैन यू गिव मी डैश एनवेलप प्लीज. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे चिल्ड्रन, नाउ यू टेल मी. एन एनवेलप, राइट. एनवेलप अ साउंड इज देयर, तो हम इसके आगे एन लगाएंगे, ठीक है. गिव मी एन एनवेलप, गिव मी एन एनवेलप प्लीज. फुटबॉल इज, अब आपको ये बताना है कि फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट, मतलब कि देयर आर मेनी पॉपुलर स्पोर्ट, उसमें ये भी एक पॉपुलर स्पोर्ट है, ठीक है. स्पोर्ट काउंटेबल है, स्पोर्ट्स प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पोर्ट के अकॉर्डिंग हमने अ लगा दिया. इन द वर्ल्ड, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द. नेक्स्ट इज रश्मि, वेट, आई एम नॉट एबल टू, या रश्मि इज रिटन, ठीक है. रश्मि इज रीडिंग, so what will we put here, an adventurous, adventurous a sound is there, so we will put here an. Suman would like to travel around the world, world के आगे हम the का use करते हैं, around the world and write a book on it, okay. Now Mrs. Mishra is principal, तो principal के आगे बच्चों आर्टिकल दा लेता है, राइट. तो ये रेक्टिफाई करके लिखा गया है, ठीक है. आपको करेक्टली लिखना है, बाय डिलीटिंग जो भी इनकरेक्ट है उसको डिलीट करना है या उसमें चेंज करना है, अगर नहीं यूज़ है तो हमें इंसर्ट करना है, ठीक है. तो यहाँ पर प्रिंसिपल के आगे द लगना चाहिए था, तो हमने उसको लगा दिया, ठीक है. नेक्स्ट है द महाभारता इज होली बुक ऑफ हिंदूज, तो इसमें हो जाएगा द होली बुक, यहाँ पे इज द होली, यहाँ पे क्या फिल करेंगे बच्चों, द फिल करेंगे, इज द होली बुक, ठीक है. प्लीज वेट फॉर हाफ द आवर फॉर मी, तो आवर के पहले हम एन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे चिल्ड्रन, एन. सो प्लीज वेट
for half an hour for me. the को हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है. Now, Leaning Tower of Pisa is one of wonders of a world. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले तो गलती आपको यहाँ भी दिख गई होगी कि वर्ल्ड के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, मैंने आपको पहले ही बताया द ताजमहल होता है, द हवा महल होता है, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं. तो दूसरी मिस्टेक यहाँ भी है. द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ वन ऑफ द, नहीं होगा यहाँ पे द करेंगे, ठीक है. वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ मिताली इज गोइंग टू ऑक्सफोर्ड टू स्टडी इंग्लिश. द इंग्लिश नहीं होता बच्चों, क्योंकि द इंग्लिश का मतलब कि इंग्लिश मैन हो जाएगा. अब आप इंग्लिश वो पढ़ने के लिए वहाँ गई है, ना कि अंग्रेज़ों से मिलने गई है, तो हम द इंग्लिश नहीं लगाएंगे, द हम हटा देंगे यहाँ से. और इसके बाद में मिताली इज़ गोइंग टू ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इसके आगे हम ए का यूज़ नहीं करेंगे. सो मिताली इज़ गोइंग टू ऑक्सफोर्ड टू स्टडी इंग्लिश. नाउ द विनीता बॉट किलो ऑफ अनियंस एंड टमाटोज, ठीक है. तो यहाँ पर अ किलो हो जाएगा, ठीक है. द विनीता बॉट अ किलो ऑफ अनियंस और द नेक्स्ट इज टमाटोज. नाउ सेवेंथ इज गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर. तो द अमृतसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, उसके पहले हम द नहीं यूज करेंगे, ठीक है. द गोल्डन टेम्पल हो जाएगा सी. आपको पता है कि गोल्डन टेम्पल भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, मोनूमेंट्स होती हैं, जो फेमस टेम्पल्स होती हैं, उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं. सो द गोल्डन टेम्पल. मिस्टर शंकर इज एन ओल्डेस्ट वर्कर इन ऑफिस. सी, अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं. तो एन सी, मिस्टर शंकर इज एन ओल्डेस्ट, तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है ओल्डेस्ट, तो वहाँ पर आर्टिकल एन या ए नहीं आता है, बल्कि आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है. सो मिस्टर शंकर इज द ओल्डेस्ट वर्कर इन अ ऑफिस, नहीं इन ऑफिस, ठीक है. ओके, सो यहाँ पर क्यों हम द का यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, राइट. नाउ how is a focused mind important for everything in life? So children, you have to do by your own. आपको खुद सोचना है कि फोकस्ड माइंड का क्या इम्पोर्टेंस होता है जीवन में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई थिंक article is clear to all of you, where to use definite article, where to use indefinite article, right? So bye everyone, take care.